All right. So in the last class, what we talked about was still the active and passive immunity, right? We discussed what active immunity was. We discussed what passive immunity was, isn't it? ये कर रहा था ना पिछली क्लास में? So now, today what we're going to do is we are going to talk about blood groups and then we're going to move towards the heart. All right, so we'll just do a small bit of recording for the blood groups first. अच्छा, अब देखो, whenever we talk about the blood groups, हमारे पास जो blood groups है ना, वो हमारे पास क्या है? These blood groups, just going to erase all of this. Uh, हमारे पास जो blood groups हैं, what are they? Blood groups are basically antigens, right? Blood groups are what? Blood groups are basically antigens. Now, these are one of the very few antigens that are shared amongst organisms of the same species or that are shared amongst the humans. Okay, matlab, for example, if I have blood group B, a lot of other humans can also have blood group B. All right. So what basically are blood groups? Blood groups actually reality में क्या होता है? Blood groups in reality are antigens. अब वो antigens किस पे लगी हुई होती हैं? Blood groups are the antigens present on the red blood cells. तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो blood groups हैं, these are antigens present where? Present on the red blood cells. अब if you would look here, all the people who have blood group A, all the people who have blood group A, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सी वाली एंटीजेंस होंगी? उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजेंस ए होंगी। ठीक है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग सेट ऑफ एंटीजेंस है, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड देम हियर, राइट? सो द people who have blood group A, they have what antigens on their, let's say, on their red blood cells? They have antigens A on their red blood cells. People who have blood group B have what antigens on their red blood cells? They have B antigens on the red blood cells, right? अब देखो, these antigens are all कौन सी वाली antigens? Self antigens. मतलब people who have blood group A, उनका जो self antigen होगा ना, वो कौन सा वाला antigen होगा? वो हमारे पास antigen A होगा. People who have blood group B, उनका self antigen क्या होगा? B होगा. Now there are people who have blood group AB. उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए भी होगी, एंटीजन बी भी होगी, एंटीजन ए भी होगी, एंटीजन बी भी होगी. ऑलराइट, आर यू गाइस फॉलोइंग मी टिल हियर? ओके. नाउ people who have blood group O, right? देखो, this blood group O was not supposed to be an O, it was supposed to be a zero, right? People who have blood group O, उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, they have no antigens. When we were back in O levels, हम लोग कहते थे कि भाई people who have blood group O ना, वो उनके रेड ब्लड सेल्स गंजे होते हैं. ठीक है. हाँ. तो अब देखो, आमना का ब्लड ग्रुप ओ है. अब आमना के रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है. अब मुझे एक बात ही बताओ, अब मुझे एक बात ही बताओ, हमारे पास जो सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है, द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम और द वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स किसको रिसीव करते हैं? दे रिसीव एंटीजेंस, राइट? दे रिसीव फॉरेन एंटीजेंस, राइट? ओ नेगेटिव विजिबल है. अब वाइट ब्लड सेल्स रिसीव एंटीजेंस. अगर 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 अब अगर हम लोग कहें कि if there are no antigens, these cells or these or they won't be, instead of these cells, let's write, they won't be detected by the white blood cells. अगर हम किसी के पास एंटीजेंस ही नहीं होंगी, तो क्या वो डिटेक्ट कर पाएगा? वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. सो ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, देर लाइक ninjas, राइट? दे आर वेरी स्टेल्थी. दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड. ऑल राइट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत, अबाउट 50% ऑफ इट वुड डू, राइट? सो यस, सो एवरीवन हु हैज ब्लड ग्रुप ओ, उनका जो एंटीजन हो, उनके पास
उनके जो रेड ब्लड सेल होंगे वो डिटेक्टेड नहीं होंगे। आई टेल यू हसन, आई टेल यू बेनिफिट तो खैर उनको नहीं होता, बट अदर पीपल हैव इट। आई टेल यू हाउ। ठीक है, तो ये आई एम नजर निंजा। ओके, ना अब इसको दो। अब मुझे एक बात ही बताओ, बस एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अगर हम लोग एंटीजेंस के बारे में बात करें ना, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं देयर आर ओनली टू एंटीजेंस, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, इसको याद रखो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर सिर्फ दो ही एंटीजेंस है, एंटीजन ए है और एंटीजन कौन सी है, बी है। ठीक है, अब इसको देखो। पीपल पीपल who have antigen A as their self antigens. People, people who have blood group A, उनकी सेल्फ एंटीजेंस क्या होंगी, उनकी सेल्फ एंटीजेंस ए होंगी, राइट। तो उनके लिए फॉरेन एंटीजेंस क्या हो जाएंगी। तो पीपल हु हैव ब्लड ग्रुप, उनकी सेल्फ एंटीजन, नहीं नहीं नहीं, नो देर इज नो जीरो, असल देर इज नो जीरो ना। देखो जीरो वाली तो एंटीजन ही नहीं है ना, वो जो है वो एंटीजन है ही नहीं, वो जीरो था तो हम लोगों ने बस कहते भाई दिस इज टाइप ओ, देर इज जीरो एंटीजन। तो अगेन 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 लिसन टू मी, एक मिनट। मुहिब, आई विल गिव मी मैसेज, आई विल। ठीक है, अब इसको दोबारा देखो। पीपल हु हैव सेल्फ एंटीजेंस ए, पीपल हु हैव सेल्फ एंटीजेंस व्हाट, ए, राइट। उनका इकरा बाद में, हमने इकरा बाद में, खैर। सो पीपल हु हैव एंटीजेंस ए, राइट, उनकी सेल्फ एंटीजन ए है। तो अगर एंटीजन ए सेल्फ है तो एंटीजन बी क्या हो जाएगी, फॉरेन हो जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो वो किसके लिए एंटीबॉडीज, वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, देखो स्नैन, पीपल हु हैव सेल्फ एंटीजेंस ए, पीपल जिनकी जो सेल्फ एंटीजेंस है वो ए है। सो इफ द एंटीजन ए इज अ सेल्फ एंटीजन, एंटीजन बी इज गोइंग टू बी व्हाट एंटीजन, फॉरेन। वेरी गुड। सो पीपल हु हैव ब्लड ग्रुप ए और हैव एंटीजेंस ए, व्हाट वुड दे बी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे, अपनी ही एंटीजन के अगेंस्ट बनाएंगे या बी के अगेंस्ट बनाएंगे, तो बी के अगेंस्ट बनाएंगे। सो पीपल हु हैव ब्लड ग्रुप ए, दे प्रोड्यूस कौन सी वाली एंटीबॉडीज, दे प्रोड्यूस एंटी बी एंटीबॉडीज। तो अगर उनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड ग्रुप बी वाले रेड ब्लड सेल चले गए ना, तो उनकी एंटीबॉडीज आके रेड, ठीक है, बिकॉज दे हैव एंटी बी एंटीबॉडीज, राइट, वो इन वाले रेड ब्लड सेल्स को किल कर देगी। Similarly, now let's turn the tables. People who have blood group B as their self antigens, उनके लिए फॉरेन एंटीजन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। I'm coming there, I'm not coming there। ठीक है, so they will, if their self antigen is antigen B, they're going to produce they're going to produce antibodies against A। Is this making sense, guys? All right, good enough, good enough। अच्छा, अब बात आती है वही आमना वाली को, सर व्हाई नॉट अगेंस्ट ए बी। I'll tell you पीपल हु हैव ब्लड ग्रुप्स ए बी, उनके सेल, उनके पास उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। एज इन बोथ ऑफ these antigens are what antigens, both of these antigens are self antigens, both of these antigens are what, self antigens। तो अगर दे, नहीं, they can make other antibodies, they cannot make antibodies only against antigen A and antigen B। देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये स्पेसिफिक होती है ना, राइट। तो ये सिर्फ ए और बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सो
they are not going to have no antibodies. अब क्योंकि इनके पास नाइदर ब्लड ग्रुप, नो एंटीबॉडीज का मतलब क्या हुआ? नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो अब क्योंकि इनके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, अगर मैं उनको ब्लड ग्रुप ए दूंगा तो देर इज नो एंटीबॉडी ए अगेंस्ट इट, तो दे विल एक्सेप्ट इट। अगर मैं उनको ब्लड ग्रुप बी दूंगा तो देर इज दीज पीपल हैव नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट ब्लड ग्रुप बी। वेरी गुड, वेरी गुड। So these people are called as universal acceptors, Disha. They can receive blood or red blood cells, to be more specific, from people having blood group A, from people having blood group B. O के पास तो एंटीजेंस नहीं है ना, तो O तो अनडिटेक्टेड है। So for that reason, people who have blood group AB, since they have no antibodies against antigens A or B, they are considered to be universal acceptors. नहीं, हार्ट इज समथिंग एल्स। हार्ट के ऊपर ब्लड ग्रुप अलग होगा बेटे। वी आर ओनली टॉकिंग, वो एंटीजेंस अलग होंगी। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द ब्लड, ऑन द रेड ब्लड सेल्स। हार्ट तो पूरे एक अलग ऑर्गन है ना मेरा बेटा। ठीक है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ब्लड डोनेशन के अंदर यस, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनीवन। दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एज वेल। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को देखो। ब्लड ग्रुप ओ हैज नो एंटीजेंस, hence they will not be detected। अब मैं ओ ए को दूं तो अगेन एंटीजन ही नहीं है, कोई चीज डिटेक्ट करने वाली नहीं है, वो ए को दे सकता हूं मैं बी को दूं, कोई एंटीजन नहीं है, कोई रिसीव करने वाली चीज नहीं है, वो डी में भी चले जाएगा। ए बी में तो एंटीबॉडीज ही नहीं है ना, ए बी को भी दे दोगे। सो फॉर दैट रीजन people having blood group O are called as universal donors. They can donate blood to any other blood groups. Why? Because since, अब इसका रीजन भी देखो, since blood group O have no antigens, they will not be detected by the white blood cells. Did we get this? हाँ, exactly. ठीक है, that's why I'm calling it a ninja. देखो बच्चे, इसको दोबारा देखो। ब्लड ग्रुप ओ जो है हमारे पास, राइट, इसके पास एंटीजेंस नहीं है, राइट। they are undetectable, they are undetectable. Since they don't have any antigens, they cannot be received by the white blood cells, they cannot be detected by the white blood cells। बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ओके। सो अब अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप ए को दूं, वो चला जाएगा, क्यों? बिकॉज बिकॉज अगेन दे हैव नो एंटीजेंस। मैं बी को भी दे सकता हूँ, मैं ए बी को भी दे सकता हूँ। ठीक है। फॉर दैट रीजन आई एम कॉलिंग ब्लड ग्रुप ओ एज अ यूनिवर्सल डोनर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू वी गेट दिस नाउ मेरा बेटा? ओके। दिशा, yes, बिल्कुल। if and if a pathogen is not going to have any foreign antigen, which ऐसा होता नहीं है खैर, लेकिन it would not, yes, it would not be detected, but your immune system would be helpless against it। तो फिर आपको मेडिकेशन वगैरह लेनी पड़ेगी एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, आप आमना का सवाल कि सर कैन इट ऑल्सो रिसीव? नो, इट कांट। Since people having blood group O, people having blood group O do not have any antigens. Since people having blood group O do not have any antigens, right? They have both the antibodies. They have both the antibodies. They have anti-A antibody. They have anti-B antibody as well. Now, आप इसको देखो। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप O को ब्लड ग्रुप A दूंगा, if I'm going to put a
blood cell having blood group A antigens inside people having blood group O, उनके पास एंटी ए एंटीबॉडी है ना, एंटी ए एंटीबॉडी आके किल कर देगी। अगर मैं उनको ब्लड ग्रुप बी दूंगा, उनके पास एंटी बी एंटीबॉडी भी है, वो भी किल कर देगी। अगर मैं उनको ब्लड ग्रुप ए भी दूंगा, तो ए एंटीबॉडी भी किल करेगी, बी एंटीबॉडी भी किल करेगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी किल करेगी, एंटी बी एंटीबॉडी भी किल करेगी। नो नो, नॉट सिकनेस, नॉट सिकनेस। बेटे तो सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात हो रही है ना। they have both the antibodies against blood group A and blood group B, right? Okay. अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दो, अब जल्दी से ना, रिवाइज इट रियली क्विकली। अब मुझे एक बात ये बताओ, people who have blood group A, they can only donate blood to who? Two people, two types of people। अब इसको गौर से सुनिएगा। people who have blood group A can only donate blood to people having blood group AB, right? And people having blood group A, all right? A and AB. People who have blood group B, they can only donate blood to people having blood group B and people having blood group AB. Right? Very good. People having blood group AB, they cannot donate blood to anyone except for themselves. क्यों? AB वाला ब्लड ब्लड सेल बी ए ब्लड ग्रुप ए में जाएगा, एंड सॉरी एंटी बी एंटीबॉडी से किल कर देंगी। मैंने AB वाले ब्लड ग्रुप, आई गिव इट टू पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, लेट्स से, यू नो, बी, एंटी ए एंटीबॉडीज किल कर देंगी उसको। If I'm going to give it to a person, if I'm going to give blood group AB to a person having blood group O, both of the antibodies are present in blood group O, so both of them will be acted against, right? So for that reason, क्योंकि मुहिबुल्लाह का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो दे ही कैन रिसीव ब्लड, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन ये ए बी के अलावा किसी को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक लेट्स होप आवर ग्रेड्स आर आल्सो लाइक आवर ब्लड ग्रुप इंशाल्लाह ऑलवेज। अच्छा, मोहम्मद राफे, बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, वो एक अलग एंटीजन है, वही मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव, देर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटीजन। मानो नहीं ना, देखो, मानो ब्लड ग्रुप ओ वालों के पास एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, तो अगर मैं उसको ब्लड ग्रुप ए बी दूंगा, तो वो ए के अगेंस्ट भी एंटीजन प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। हाँ, इकरा ये वाली चीज ना हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ेंगे, डोंट वरी, बड़ा मजा आता है इसके अंदर। वी टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। ठीक है, राफी बेटे बात समझ पाई चंदा? ओके, ठीक है। अच्छा, now let's have a look at people having blood group O. People having blood group O. People having blood group O can donate blood to A, to B, to AB, but since they have both the antigens, they cannot accept. For that reason, for that reason, they're called as universal donors, right? People who have blood group AB are called as universal acceptors. Do we get this, guys? ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ, एक switch devices actually. Do we get this? So this is all for immunity.